مطلب یہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک گنی پگ ہے جس طرح کہتے ہیں، اور ہم نے اس کو مسلمان بنانا ہے، ہم نے اس کو پاکستانی بنانا ہے، ہم نے اس کو ایک نیک انسان بنانا ہے. مطلب ہم ادب اطفال کو یہی سمجھتے ہیں، ہم انڈوکٹرینیشن کو ادب اطفال سمجھتے ہیں. ادب اطفال تو یہ ہے کہ بچے کو آپ جیسے ایک ایسا مٹیریل دیں جو اس کو فیسینیٹ کرے، جو اس کے جو امیجز ہیں، جو سمبلز ہیں، ان کو انلائٹن کرے. بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ مطلب آپ اس کو صرف ایک آبجیکٹ کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی بنانا ہے اور ایسے بھی انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے اور ایسے بھی کرنا ہے اور ایسے بھی کرنا ہے. آخر کیوں؟ یعنی آپ جو اپنا لٹریچر لکھتے ہیں ایڈلٹس کے لیے، اس میں اگر یہ کنسیڈریشنز نہیں ہے تو بچے کو کیوں آپ پھر مطلب ایک خاص ایک مولڈ میں آپ اسے ڈھالنا چاہتے ہیں ادب کے ذریعے؟ ادب کو ادب رہنے دیں. ادب کو انڈوکٹرینیشن کا ایک ہتھیار نہ بنائیں. ایک سوال ہے اسی ریفرنس سے، مائک سے نہیں، اسی ریفرنس سے ایک سوال ہے صاحب صدر. تو اب آپ نے اس پہ اعتراض کیا کہ بچوں کو یہ نہ کیا جائے. اگر دو چار اور بھی اس طرح سوچتے ہوں تو گزشتہ 40-50 برسوں میں انہوں نے کیا تخلیق کر کے دکھایا کہ دس از دا الٹرنیٹو، اور اس طرح بچے کو کریٹو کیا جا سکتا ہے، اس طرح بچے کو زیادہ یوزفل بنایا جا سکتا ہے. انفیکٹ یہاں بیٹھ کے تنقید کے دو بول بولنا اٹس ویری ایزی. زمین کے حقائق بالکل مختلف ہیں. بچہ بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ زیادہ چوزی ہے. جن لفظوں کو وہ چنتا ہے وہ کیا چنے گا کہ میں دنیا کو، یعنی آپ کا بچہ جب گیم کھیلتا ہے اور اس کے بعد وہ مارتا ہے اور ابیوسو ہو جاتا ہے، اس پہ آپ چڑھتے ہو، کیا دینا چاہتے ہیں اس کو؟ دنیا کی بس چیزیں. کل ایک ویڈیو چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، امریکہ کی کچھ 70 لڑکیوں کے انٹرویوز تھے کہ تمہاری زندگی میں، ان میں 70 میں سے صرف ایک لڑکی نے کہا کہ وہ 12 سال کی عمر میں سب اپنی ورجینٹی کھو چکی تھی، اور صرف ایک نے کہا میں نے اپنی ورجینٹی سیو کی. ہم کیا بتانا چاہتے ہیں بچوں کو؟ یعنی یہ آزادی دینا چاہتے ہیں؟ یا ہم جب بھی اسلام کے خلاف بولیں گے، پاکستان کے خلاف بولیں گے، والدین سے محبت کے، ہم ان کو کوئی جانور بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی اتنے سالوں سے، ابھی جب یہ فاضل مکرم کا بات کر رہے تھے 19ویں صدی کا لٹریچر، اگر آپ نے انگریزوں کے بنائے ہوئے ادارے دیکھے ہوں تو وہ بھی اس پڑھنے والے کو اس اسٹیٹ کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ، سن آف دا سوائل بناتے ہیں، اس کی ویلیوز کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم کس ویلیوز کی بات؟ چین کی جتنی کہانیاں ہم نے پڑھی، جو موزے تم نے خود بھی لکھی اور سنائی، ایون ان کے پہاڑوں کو کاٹنے والے بچے اور اپنی ویلیوز کو، مجھے یاد ہے جو ان کی بہت پاپولر کہانی ہے، چھوٹی سی ہے، اور وہ ایک خاندان میں گلدان تھا بہت سالوں سے، اور بڑی قدر کرتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے. ایک بچے سے ٹوٹ گیا تو بچے نے جا کے دادے سے کہا، دادا ایک خبر ہے، وہ گلدان میں نے توڑ دیا. آپ کو بہت تردد تھا اس کی حفاظت کے لیے. یہ ان کی آفیشیل کہانی ہے. تو دادا نے اس کی بات سن کے کہا کہ میرے بچے، ہاں تو نے ہم کو اس تردد سے آزاد کر دیا، اس کی حفاظت کے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ جو ندامت کا تم پہ وقت آئے گا یہ نسلوں چلے گا کہ تم نے کیا ضائع کر دیا. یعنی ہم اپنے بچوں کو یہ یہاں ممکن ہم تالی بجا دیں ان ایسے سوالوں پہ، ہمیں اچھا لگے گا کہ ایک بڑے ماڈریٹ قسم کے سوال ہو رہے ہیں، لیکن دنیا سے بہت آگے نکلے گی. پوری دنیا میں اس وقت صورت یہ ہے کہ ان کتابوں کی جگہ ہم تو سوچنے میں بھی آمادہ نہیں ہے. جتنے ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ مقالے لکھ کے لاتے ہیں وہ ادیب نہیں ہیں، وہ بچوں کا لٹریچر جانتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے پڑھا بھی نہیں، انہوں نے کبھی 40 سال سے رسالہ بھی نہیں پڑھا، تو وہ متبادل نہیں سوچ سکتے. دنیا میں اس وقت بچوں کے اور بڑوں کے لٹریچر کا نیا متبادل آیا ہے، اور اس وقت کچھ 37 ملکوں میں، اینڈ دیٹس ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے، دیٹس ہیومن لائبریری. اور وہ ایک جگہ 6 لوگوں کو 7 لوگوں کو، انڈیا تک میں 10 شہروں میں ان کے ہاں، امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، وہ 6-7 اہل علم کو بلاتے ہیں، موضوعات طے کرتے ہیں اور ان کے سامنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، وہ سوال اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کے کیا خیال ہے، ہم اپنی زندگی کی جو گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ دکھائیں گے ان کو.
जो हर आदमी की ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो उनको बताएगा कि दिस इज़ माई अचीवमेंट, दिस इज़ माई लर्निंग, ताकि तुम इस सोसाइटी को आगे बेहतर लेके चलो। अच्छा, दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे ये नेट की और ये और वो, सर दुनिया इससे बहुत समझदार है। लोग सफ़र पर निकलते हैं, उनके पास किंडल होता है, इतने ही साइज का है, और उस पे लाखों नहीं है करोड़ों किताबें हैं। और मेरे अपने जानने वाले ऐसे हैं कि लंबे सफर पे जाते हैं तो किंडल पे किताबें खरीद के। पाकिस्तान में कल मुझे एक साहब ने बताया उर्दू बिलार के, उसने एक साल के अंदर सिर्फ एक बंदे की एक किताब 40 लाख रुपए की बेची है। ये पाकिस्तान में बिकती हैं किताबें, लोग खरीदते हैं, पढ़ते हैं। पंजाब की लाइब्रेरियों में 40,000 लाइब्रेरियों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो पिछली थी, इसकी जर्मनी के एक एनजीओ की मदद से पूरी लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की, पूरे बैग थे उसके चमड़े के बने हुए, वो दिए। इन बड़े टीचर्स ने उनको खोलने नहीं दिया। तो मसला बच्चों के साथ नहीं है, मसला लिखने वाले के साथ भी नहीं है, मसला उन बड़ों के साथ है जो एक बंद कोकोन से निकलने पे तैयार नहीं है। ये मेरा भी एक सवाल है। उसमें सर मैं ये समझता हूँ जो इंजीनियर है उनसे पूछ रहा हूँ ऑनलाइन हो गए उसमें मैं भी एक बात करना चाहता हूँ कि आज के सेशन में वो निकाल सामने आए हैं। एक तो फयाज साहब ने इस तरह से बात की कि जैसे जो कुछ लिखा गया इसमें कुछ मुझे ऐसा लगे कि जैसे कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जो है वो सामने आई है कि बच्चों की इम्पोज किया जा रहा है। सर ने जो सवाल उठाया तो मैं समझता हूँ कि ये बहस बहुत पहले से अदब में मौजूद है, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी। यानी एक बात तो ये कि जो कसूर है वो हमारे निज़ाम तालीम का है, वो जहानत की तश्कील के बजाय जो है वो बच्चों को तोते बनाकर रटा साजी पे और जीपीए और ये चीज़ें जो है वो, तो इसलिए निसाब के अंदर जो अदबियत मौजूद है, जो शऊर साजी है, बच्चों से भी दूर है, वो सिर्फ रटा लगा के। और ये दूसरा एक मसला ये है कि बच्चों के अदब का या अदब का अपना एक मिजाज है, और इस मिजाज की जो रूह है वो शऊर साजी है, शख्सियत साजी है, ये बच्चों की नफ्सियात की तश्कील करती है। तो इसलिए सवाल यहाँ पर जो है वो तख्लीकार की अपनी सलाहियत का है। देखिए इकबाल ने मकसदी शायरी की है, अल्लामा इकबाल साहब ने, हमदर्दी की नज़्म आप देखें, फैंटेसी भी उसमें है, ठीक लुत्फ भी आता है अदबियत का, शेरियत का लुत्फ भी आता है, और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को एक मैसेज भी मिल जाता है। इसमें बुराई कोई नहीं है, उसको प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए, उसको अदब बनाया जाए, उसको जो अदब की अफाकी अक़दार हैं, जमालियात, उनका ख्याल रखें। ये मेरा सवाल, मेरी एक राय कायम है, मैं उसकी वजाहत चाहता हूँ कि हम माइक पे बैठ जाए। मेरी एक राय कायम है, ये ले लीजिए अदब के हवाले से, जिसमें मैं मिसाल के तौर पर फैज़ और अल्लामा इकबाल का नाम इसलिए लूँगा कि उनकी शायरी में ये चीज़ ज़्यादा नुमायाँ है कि वो अपने नज़रियात को अपनी शायरी में लाते हैं, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो। और मेरी राय में अदब कोई भी हो, किसी तरह का भी उसका काम महसूस करने के साथ साथ अपने नज़रियात और अपनी शख्सियत की तब्दील भी है। तो मैं साहिब सदर से अपने इस राय की वजाहत चाहूँगा, खुद फैसला। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहल में है। शायद वजारत आलिम इस प्रोग्राम के वो करेंगे, अपना मकाला करेंगे, ताकि इस प्रोग्राम की रोशनी में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब डॉक्टर इफ्तिखार मुकर साहब जो भी अलमानात और मौज़ूआत उनसे किए, उनका उन्होंने पता किया, और बच्चों के
थोड़ा सा नज़दीक कीजिएगा, आवाज़ बिल्कुल एक। ये जब से मैं समझता हूँ कि बच्चों के आवाज़ जब से किसी भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा माइक नज़दीक जिस तरह किसी भी चीज़ के जो है वो वसाइल होते हैं, उस तरह वसाइल होते हैं। कोई भी चीज़ जो हम देख रहे होते हैं, जिसको फेस कर रहे होते हैं, इस तरह ये है कि बच्चों का अदब ये नहीं है कि जब उसका आवाज़ हुआ तो उसको भी समझते हैं और समझे, बल्कि है कि इख्तिलाफ और इसके साथ साथ हर और हर दौर में, हर हालात में मुश्किलात को और इस अदब को यहाँ तक लेके आए कि आज हमारे लिए फख्र है कि हम पाकिस्तानी बच्चों को एक बामकसद अदब से नाश कर रहे हैं, रसायन की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, ये सारा मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के अदब के हवाले से थोड़ा बहुत काम मुझे करने का मौका मिला है और मुख्तलिफ सेमिनार्स में वर्कशॉप्स में इन चीज़ों को फेस करते हुए, मशवरा करते हुए बच्चों का अदब और उसकी रसायन हैं, किताबें हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें मुख्तलिफ पहलू जो हम सामने लाते रहे हैं। बहुत गौर व खौस के बाद जो मैं इस नतीजे में पहुँचा कि तालीमी इदारा जो वो एक बुनियादी करता है कि बच्चों के अदब के फ़रोग़ में या उसकी रुकावट हमारे मुल्क में जितने भी तालीमी इदारे हैं, और अब तो यह है कि सरकारी तालीमी इदारे तो इनके साथ उनकी तादाद बहुत महदूद होती जा रही है। बेशुमार चेंज हैं जो इंग्लिश स्कूलिंग के नाम पे पूरे पाकिस्तान में उसने अपने पर फैला दिए हैं, अपने आप को इतना वसी कर दिया है, एक जाल बना दिया है तो उसके बगैर ये कि पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे स्कूल जो देहात में हैं, गाँव में हैं, वो भी मुश्किल इंग्लिश नामों के साथ जो है कि वो अपने स्कूल को शुरू करते हैं और फिर ये है कि वो चंद किताबें तो ऑक्सफोर्ड के लिए रहता है, किसी और इदारे के लिए होता है। अब उसमें यह है कि ये वालिदैन की जो जान है वो उस तकनीकी इदारे की इंतजामिया क्या वो रोज़ डिमांड करते हैं कि बच्चों को लिए आज चार्ट्स के लिए 50 रुपये चाहिए, उनके नफ्स के लिए 200 चाहिए, इस तरह यानी जो वो चाहते हैं वो करते हैं और वालिदैन हर सूरत में मजबूरी की शक्ल में उसको पूरा करते हैं। ये पूरा मैं समझता हूँ कि 10-15 बल्कि 20 साल में जब से स्कूल का कल्चर आया और फिर ये कि नंबरों की दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ, उसने बच्चों को एक रट्टू तोते से ज़्यादा और उनमें कोई ज़्यादा नहीं किया। इस हवाले से मुख्तलिफ असातिज़ा से, मुख्तलिफ इंतज़ामिया से जब भी कभी बात हुई जो दर्द दिल रखते हैं, मगर ज़ाहिर है कि उसी सिस्टम का हिस्सा है, ज़ाहिर है कि वो एक जो है वो मिशन तो नहीं है, अब तो बिजनेस है। जो भी आदमी आता है मिशन के तौर पे करेगा तो 4 दिन स्कूल चलेगा, उसको फंड करेगा। इस आला जो है हर आदमी चाहते ना चाहते हुए उसको बिजनेस लेके चलता है। अब दबे दबे दाग में लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हमने अपने स्कूल को ये है कि वसत देने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए हमने बच्चों में नंबरों की दौड़ का सिलसिला शुरू किया और फिर ये कि उनको इस तरह से लेके आए कि हम हर जगह पे उनकी मार्केट भी करते हैं। अगर ये है कि वो शहर की बुनियाद पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बोर्ड के लेवल पे सारा एक जना वो कल्चर कि वालिदैन प्रोटेक्ट किया जाए कि बच्चे जना को अगर ये कि 1100 में से 10,000 90 लेने चाहिए, 96 लेने चाहिए, इस लेवल तक जाना है पूरा। उसका नतीजा ये है कि खुद अब तालीमी अदारे
और उनकी इंतजामिया अब ये सोच रही है कि ये सारा जो हमने सिस्टम शुरू किया अपनी इस सनत को, इस इंडस्ट्री को, बिजनेस को चलाने के लिए, मगर अब ये कि वो बच्चे और तालिब इल्म जब उस इंडस्ट्री से बाहर निकलते हैं तो मुआशरे को क्या देते हैं? कुछ लोग होते हैं कि किसी न किसी जॉब में, बिजनेस में भी एडजस्ट होते हैं, बाकी सारे कहाँ हैं बच्चे? तो इसमें जो इसका